Okay, hey guys, so today I'll be teaching you guys the subject Bhagavad Gita for holistic development. Actually, I uploaded a random PYQ or notes about this subject which I made in my previous semester, and now people are asking about notes and PDFs. So I thought that I might help you guys. So because I had this subject in my previous semester and I could not find anything about this subject, and that was so frustrating, and so I can understand how you might feel. So that's why I'm helping you guys. So please like and subscribe my channel. So let's start with the syllabus, and first and before starting I would like to tell you guys that मैंने इस वीडियो में notes, syllabus and PYQ सब कुछ include करा है, so you can rely on this video and you will get very good marks if you watch this before your exams. Okay, so let's start with the syllabus. So syllabus is very important. You must know the syllabus about your subject, and it is like 40 to 50% thing is done when you know the syllabus. Okay, so I am assuming your exam is today or tomorrow, so let's start with the units only. You, if you want to read the syllabus, you can read, but I'm starting with the syllabus. Okay, so first unit is know thyself. It means knowing yourself. It means holistic development. So holistic development कैसे होता है? इसमें दिया हुआ है पंचकोश. पंचकोश मीन्स पंच, हिंदी में पंच मीन्स पांच. सो ह्यूमन बींग्स की जो होती है पांच लेयर्स होती है, जैसे लाइक अनियन, अनियन में इतनी सारी लेयर्स होती है, वैसे ह्यूमंस की भी बहुत सारी लेयर्स की बात की गई है. जो ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होता है वो जब सभी लेयर्स एक साथ डेवलप कर रही होंगी तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ये नहीं कि अगर एक ही लेयर पे फोकस कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हो जाएगा और बाकी लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो नहीं होगा. सभी लेयर को इक्वली जब हम ट्रीट करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे, तब जाके हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लेयर. इट इज अन्नमय कोश. अन्नमय यानी जो फर्स्ट लेयर है, ये हमारी बाहर की जो लेयर होती है ना, बॉडी वाली, ये फिजिकल लेयर है. इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हेल्दी खाना खा के, फूड से, एक्सरसाइज से, स्लीप से. देन कम्स प्राणामाया कोश. ये प्राणामाया से आप समझ सकते हो, जैसे कि योगा में प्राणायाम होता है, वो ब्रीदिंग के लिए होता है ना. सो यू कैन रिलेट इट कि वो किस लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है. सो यू कैन रिलेट इट लाइक दैट कि प्राणायाम मीन्स एनर्जी वाली जो लेयर होती है वो. सो इससे जो हमारी एनर्जी, ब्रीदिंग वगैरह इस सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है. सो फिर आता है मनोमाया कोश. मन, मन से यू कैन अंडरस्टैंड कि मन इट इज रिलेटेड टू माइंड. सो माइंड जो हमारे उसमें इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, इन सबको ये दिखाता है. देन वी कैन यू नो make develop our mind if we know how to control our anger, fear and overthinking. Then comes Vijnamaya Kosh. Vijnamaya Kosh. You can remember it like this, like Vijay. Hindi mein Vijay. I don't know. I do not know if you guys know it. No, Vijay means jeetna ya, you know, Vijay. So how do people win with their wisdom or decision making thinking and all? You can remember it like that. Just to remember, I'm saying. Okay, so you can remember it like this कि विजय माया कोश, इंटेलेक्ट वाली जो लेयर होती है वो होती है ये. देन कम्स आनंद माया कोश. आनंद यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आनंद आ रहा है, लाइक आनंद कब आता है? जब हम खुश होते हैं, हम पीस मिलता है, तो ब्लिस. ये ब्लिस वाली लेयर होती है. इसमें जो इनर पीस होता है, हैप्पीनेस होता है. तो ह्यूमंस का क्या होता है कि अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस ओनली, पीस ओनली. ओके, so now you can also, like, if question comes about this, you can make a flow chart or mind map, like body energy. Like you can create 5 layers of, like you can write punch coach, and then you can, by creating arrows, then you can write down body, energy, mind, intellect and bliss. ये जो होता है ये एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट दिखाता है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है, तो यू विल गेट गुड मार्क्स ओनली. So then you can, and it is very important when you are writing an answer, so you must write something current scenario वाला कोई example, या फिर you can write any experience you had about that, like if anything you remember about that. like अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा है और कुछ तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है उस चीज को लेके, यू मस्ट राइट दैट. नाउ कम्स डायरेक्टिंग माइंड टूवर्ड्स धर्मा एंड कर्मा. सो हमारा माइंड कैसा होता है? ह्यूमंस का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, लेजी होता है, इमोशनल होता है, ओवर थिंकिंग. इसमें जो है तुम बता सकते हो कि हर एक आंसर में ना ट्राई करना कि गीता से रिलेट करो. गीता में क्या हुआ था? अर्जुन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, मतलब वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि उनको युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो यू कैन, उनके माइंड का ही तो खेलता है ना ये सब कुछ. तो यू कैन एक्चुअली राइट ऑल दिस. ओके, तो धर्म क्या होता है? धर्म इज कि हमारा धर्म क्या है? डूइंग व्हाट इज राइट, मॉरल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज अ स्टूडेंट तुम्हारा क्या धर्म है? योर धर्म इज टू स्टडी. ओके, सो कर्मा, कर्मा मीन्स एक्शन, कि तुम्हारा क्या एक्शन ले रहे हो. एक्शन जो होता है वो विदाउट अपना सेल्फिशनेस के होना चाहिए, कि अपना फायदा नहीं देखना है, बस करना है अपना कर्म. ठीक है, ये नहीं देखना कि अगर मैं
ये कर लेता हूँ तो मुझे वो फायदा होगा, ऐसे कुछ नहीं करना। सिर्फ तुम्हें अपना कर्म करना है। सिर्फ तुम स्टूडेंट हो, तुम अपना कर्म करो, तुम पढ़ाई करो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। धर्म मतलब अपना धर्म भी करो, कर्म भी करो, तो तुम्हें अपने आप अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो नाउ गीता के 4 वेज होते हैं माइंड को डायरेक्ट करने के। सबसे पहला क्या, फोकस ऑन ड्यूटी, स्वधर्म। स्वधर्म मतलब खुद का धर्म। अपनी ड्यूटी पे फोकस करो। डू व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड्स, नॉट व्हाट मूड मूड वांट्स। इट इज लाइक, अब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा एग्जाम है सो यू मस्ट स्टडी। ये नहीं है कि तुम्हारा मूड बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं पढ़ना है, एंड यू विल then procrastinate and do not, and you will not study. No, it's not like that. You have to study, it is your dharma. Then comes second point, detach from results. अब तुम पढ़ रहे हो, अब तुम पूरे टाइम ये सोचोगे यार मेरा तो एग्जाम है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ, तो एक्चुअली इट विल इम्पैक्ट योर रिजल्ट। तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम्हें तुम्हारा भी धर्म क्या है, तुम्हारा पढ़ना है तो तुम पढ़ो। तुम्हें रिजल्ट के बारे में कुछ चिंता ही नहीं करनी चाहिए अभी। सो डोंट obsess over success or failure or praise or blame. Okay, so now choose right action over comfort. अब तुम्हारा right action क्या है, स्टडी। सो पढ़ो। अब कंफर्ट ये नहीं देखना कि अब कंफर्ट देख रहे हो, अभी पढ़ो तुम, ठीक है। ओके, सो नाउ इट इट इज लाइक ड्यूटी जो है वो मूड से ऊपर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फियर से ऊपर होनी चाहिए। देन कम्स कंट्रोल द सेंसेस। तुम्हें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, डिसिप्लिन सेंसेस होना चाहिए। स्टेबल माइंड जो होता है वो वही होता है जिसने अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। यू मस्ट हैव हर्ड इट पीपल सेइंग इट कि इंद्रियों पर कंट्रोल करने से जो है एक डिसिप्लिन वो होता है लाइफ में, और एक स्टेबल माइंड आता है। ओके, तो ये सब करने से क्या होगा, एक बैलेंस्ड लाइफ होगी, एक एथिकल लाइफ होगी, एक पीसफुल पर्सन बनेगा। देन कम्स यूनिट 2। इसमें क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया है कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 गुण गुण के बारे में बात करी गई है कि 3 कौन कौन से गुण होते हैं। लाइक गुण मतलब क्वालिटीज, कौन कौन सी क्वालिटीज होती है हमारे दिमाग की। ओके, तो फर्स्ट गुण को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम योर नानी दादी वगैरह से। तो सात्विक क्या होता है, सात्विक इज प्योर काम एंड गुड। इट इज लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि पीस दिखाता है, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंपैशन। इसमें एक इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, वो वाइज होता है। और राजसिक क्या होता है, एक्टिवनेस, रिजल्ट्स, ओवरथिंकिंग, एम्बिशन, एंगर, कंपटीशन, बिजी बट स्ट्रेस्ड। इसमें क्या होता है, आजकल जो लोग हैं ना, मोस्टली यू विल फाइंड आउट कि सब लोग राजसिक है। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सबसे अच्छा माना गया है वो सात्विक माना गया है, सात्विक होना चाहिए। देन कम्स तास्मिक। तास्मिक क्या होता है, तामसिक। तो तामसिक क्या होता है, तामसिक जो है लेजी, डार्क, कंफ्यूज्ड। ये दिखाता है खुद की लोग कैसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, नेगेटिविटी होती है, लेजीनेस होती है और डाउनफॉल प्रॉब्लम्स। ये भी आजकल 60 to 70% लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो दीज ऑल आर, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है। इसका क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सत्व जो गुण है वो इंक्रीज करना चाहिए, और राजस्व और तामस जो गुण है वो रिड्यूस करना चाहिए। ओके, अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देन कम्स देवी एंड असुरी समाप्त। देवी, एज यू कैन अंडरस्टैंड, देवी मीन्स गुड, असुर मीन्स बैड। तो देवी एंड असुरी ये है क्वालिटीज की। देवी क्वालिटीज कौन सी होती है, यू कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, देवी मीन्स डिवाइन क्वालिटीज, असुरी मीन्स डेमोनिक क्वालिटीज। सो देवी क्वालिटीज कौन सी होंगी, जो तुम्हें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगी, प्योरिटी की तरफ लेके जाएंगी। एंड इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज आती है, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, कामनेस। असुरी में कौन कौन सी आती है, जो तुम्हें सफरिंग की तरफ लेके जाएंगी। इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, एंगर, ईगो, ग्रीड, डिसऑनेस्टी, क्रुएल्टी, हिपोक्रेसी, एरोगेंस। ये जिन लोगों में होती है वो लोग क्या होते हैं, उनकी डिमोनिक क्वालिटीज होती है, ये वो उनकी लाइफ जो है सफरिंग की तरफ ज़्यादा जाती है। फिर आते हैं 3 मोड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कौन कौन से 3 मोड्स है। लर्निंग का पहला मोड तो श्रवणा, लिसनिंग केयरफुली। इसमें तुम अर्जुन का एग्जाम्पल दे देना कि कैसे उनको कृष्णा जी जब बता रहे थे तो वो कैसे केयरफुली सुन रहे थे, है ना। तो इसमें बता, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हो कि श्रवण, लिसनिंग केयरफुली, लाइक whenever we are in our classroom, so whenever our teachers are teaching us, we are first listening. So इसमें क्या होता है कि हम पहले सुनते हैं, फिर देन मनाना। मनाना मीन्स रिफ्लेक्टिंग एंड क्वेश्चनिंग। सो लाइक अर्जुन को जब कृष्णा जी ने समझाया तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ओके, तो दिस इज हाउ यू लर्निंग इज डन। सो लाइक अगर तुम्हारा टीचर कुछ पढ़ा रहा है, यू आर फर्स्ट लिसनिंग, then you will reflect on that and then you will question.
अगर तुम्हें कुछ कोई पढ़ा रहा है, तुम सुनोगे उसको तभी तो तुम्हें समझ आएगा, तभी तो तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तुम रिफ्लेक्ट करोगे, तुम क्वेश्चन करोगे, तो दैट्स हाउ इट विल स्टे इन योर माइंड। अगर तुम बस सुनते रहोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, क्वेश्चन करोगे, तभी तो तुम्हें कुछ समझ आएगा ना। देन कम्स निध्यासना। इसका होता है डीप एसिमिलेशन एंड लिविंग द नॉलेज। ओके, सो लाइक अब तुम्हें नॉलेज मिल गया, उसको तुम और ज़्यादा उसका वो कर रहे हो कि हाँ, उसको अपने अंदर उतार रहे हो नॉलेज को, और उसको अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हो। ओके, इसमें तुम क्लासरूम का एग्जांपल दे सकते हो, गीता का एग्जांपल दे सकते हो, दोनों एग्जांपल ज़रूर देना। देन फील्ड ऑफ एक्शन। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट मस्ट शोन इन रियल लाइफ। इसमें क्या होता है, मस्ट शो इन रियल लाइफ, इसमें क्या होता है कि फैमिली और सोसाइटी दिखता है इसमें। लाइक सात्विक पर्सन जो होता है वो हमेशा हार्मनी लेके आएगा, राजसिक जो है वो हमेशा स्ट्रेस लेके आएगा, तामसिक जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये लिख देना, और ये जो है तुम इसके एग्जांपल्स भी दे सकते हो आप लोग कि जैसे सात्विक इंसान जो होगा, इसकी गुड क्वालिटीज होंगी, वो हर जगह पे जो है हैप्पी माहौल रखेगा, और जो राजसिक होगा वो स्ट्रेस। और आजकल का एग्जांपल भी दे सकते हो, कैसे आजकल जो लोग हैं मोस्टली राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी लोगों की लाइफ में आजकल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो है आजकल लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती है। ओके, सो यू कैन गिव एग्जांपल्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या डायलेमास ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। इसमें तुम्हें मॉडर्न डे अर्जुन बनाया गया, लाइक इट्स अबाउट, मतलब पूछा है कि अर्जुन जो है, अर्जुन कौन है, इसमें क्वेश्चन आता है कि हु इज अर्जुन, ऐसे आ सकता है, तो अर्जुन का तुम्हें बताना है। अर्जुन तुम्हें पता है कौन है गीता में, बट आज का मॉडल डे अर्जुन कौन है। उस टाइम पे अर्जुन क्या थे, अर्जुन कंफ्यूज थे ना, कृष्णा जी ने उनकी हेल्प करी थी, उनको समझाया था। तो आजकल के अर्जुन कौन है, आजकल के अर्जुन वही है जो कंफ्यूज है, फियरफुल है, इमोशनली वीक है, वो स्टक है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो टुडेज अर्जुन जो है, बता सकते हो एग्जाम स्ट्रेस को लेकर बच्चे जो है स्ट्रेस लेते हैं, करियर कंफ्यूजन होती है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, ओवर थिंकिंग होती है। अतः फाइंडिंग कृष्णा। अब हमने अर्जुन बता दिया, अब हम बताते हैं कृष्णा कौन है। कृष्णा हो सकता है कोई फ्रेंड, हो सकता है कोई फिलोसोफर, हो सकता है कोई गाइड, हो सकता है कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई बस बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन तुम कभी भी कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तुम उसके साथ शेयर करते हो, तुम हमेशा सॉल्यूशन दे देता है। कोई फिलोसोफर हो सकता है, या फिर कोई गाइड हो सकता है, तुमने जैसे यूट्यूब पे देख लिया संदीप महेश्वरी का कोई देख लिया वीडियो, वो कैसे गाइड करते हैं, या तुमने अपने किसी टीचर का कुछ सुन लिया, उन्होंने, तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे, उन्होंने उसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन दे दिया, तो कोई भी तुम्हारी लाइफ में गाइड किसी भी रूप में बन के आ सकता है। अब कृष्णा जो है वो क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि लिसन विदाउट जजमेंट, हमें सुनना चाहिए बिना किसी को जज करे पहले। देन धर्म प्लस सेल्फ कंट्रोल। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म, लाइक यू आर स्टूडेंट, व्हाट इज योर धर्म, योर धर्म इज टू स्टडी, बट व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज खुद के ऊपर कंट्रोल करना। कंट्रोल किस चीज़ से, प्रोक्रास्टिनेट, लेजीनेस, इन सब चीज़ों से कंट्रोल करना। लाइक अगर तुम अपने धर्म पे और तुम सेल्फ कंट्रोल पे काम करोगे तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। सो दिस इज राइट एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। सो लाइक यही कि तुम्हें अपना राइट एक्शन पढ़ाई करनी है, रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, बैलेंस माइंड रखना है हमेशा अपना। सो ये बता सकते हो। देन फिर मॉडर्न रेलिवेंसी, ये मैंने बताया कि गुड टीचर, काउंसलर, ये सब कैसे क्लैरिटी देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं और एनकरेज करते हैं सेल्फ अवेयरनेस को। क्या नाउ जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी की कैसे जर्नी होती है, कि सेल्फ डिस्कवरी में क्या क्वेश्चन होते हैं। लाइक अगर तुमने सोचा होगा कभी, तुम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी आर सिटिंग एंड वी आर डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसमें क्या होता है कि हम खुद से खुद के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों, लेकिन हम किसी ना किसी लाइफ का पर्पस के ऊपर हमारी कभी कभी थिंकिंग चले जाते हैं ना। तो दिस इज व्हाट जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी इज लाइक। सो इट इज लाइक वी हैव क्वेश्चंस इन आवर माइंड, लाइक हु आई एम, व्हाट इज माय पर्पस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। गीता जो है इसी चीज़ का सॉल्यूशन दिखाता है। इट शोज अस सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। जस्ट रिमेंबर दीज 5 थिंग्स। ये तुम किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी छाप सकते हो कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये गीता की लर्निंग्स है। सो ये जो है इसका क्या रिजल्ट होता है, मेंटल पीस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, पर्पसफुल लाइफ होती है। नाउ कम्स लास्ट यूनिट, यूनिट 4। इसमें जो है 3 मोड्स ऑफ नेविगेशन बताए गए हैं। फर्स्ट जो हो गया कर्मा योगा, पाथ ऑफ एक्शन, यानी कि डू योर ड्यूटी सिंसियरली विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। निष्कामा कर्मा, वर्क एज ऑफरिंग, सेक्रीफाइस। इसमें तुम्हें श्लोक भी याद करने होंगे, इसमें एक था श्लोक, मैं अभी दिखाऊंगी वीडियो में आपको, पहले आप ये पढ़िए। यू हैव द राइट टू एक्शन नॉट टू द फ्रूट्स, यानी कि तुम्हें एक्शन के ऊपर तो राइट है लेकिन रिजल्ट के ऊपर नहीं है। अब जैसे आपका एग्जाम है, आप पढ़ सकते हो, ये आपके हाथ में है, लेकिन अब रिजल्ट तो आपके हाथ में ये नहीं है ना कि आप कितने नंबर खुद को दे सकते हो। ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे।
देन इससे क्या होगा, मेंटल पीस होगी, एफिशिएंसी होगी, डिसिप्लिन होगा, प्योरीफाइड माइंड होगा। देखो आप दो सिचुएशन देखो, आप एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम है, उसको पता है उसका एग्जाम है, वो पढ़ रहा है कि उसको पता है कि टाइम कम है, वो पढ़ रहा है, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, अपनी पढ़ाई में यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक स्टूडेंट है जो कि स्ट्रेस ले रहा है कि मेरा एग्जाम है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, वो और स्ट्रेस बिल्डअप हुए जा रहा है और वो पढ़ भी नहीं रहा है, वो स्ट्रेस लिए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर बहुत कम नंबर मिलेंगे या फेल भी हो सकता है स्ट्रेस के चक्कर में। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, मेंटल पीस होना चाहिए लाइफ में। ओके, नाउ कम्स जनाना योग। इसमें क्या होता है, पाथ ऑफ नॉलेज। इसमें जो है हम खुद को वो करते हैं, खुद नॉलेज मतलब नॉलेज के पाथ, मतलब पाथ पे चलते हैं, तो इसमें जो हमें ट्रू नॉलेज, हमें ट्रू सेल्फ के बारे में पता चलता है, आत्मन वर्सेस इल्यूजन, मतलब मोह माया ये सब बोलते हैं ना कि क्या आत्मा है, क्या हमारा खुद का वो है, तो हमें पता चलता है कि क्या रियलिटी है लाइफ की, क्या इल्यूजन है लाइफ में, से हम सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज लेके से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और फिर स्टडी एंड रिफ्लेक्शन, हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो रिमूव्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को रिमूव करता है, एंड इसका बेनिफिट क्या होता है, क्लैरिटी लाता है, विजडम लाता है, इनर फ्रीडम लाता है। देन कम्स भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, पाथ ऑफ डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड विद लव एंड फेथ, प्रेयर, चैंटिंग, सर्विसेज, ये सब कर होते हैं इसमें। इससे क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेंथ आती है। अब ये सारे पार्ट मिलके क्या करते हैं, परफेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर PYQ। इसमें जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको कोई भी शॉर्ट नोट लिखना है इन दोनों में से किसी टॉपिक पे, योगा पे, देवी समापत पे, अनायामाई कोश पे। ओके, सो देखो योगा का मैंने आपको बताया, योगा तो आप लिख सकते हो इसमें कि योगा क्या होता है, उसमें उसके एग्जांपल्स में योग, इसमें ये वाला योगा नहीं लिखना है कि वो योग कौन सा है, ये इसमें इन वाले योग की बात हो रही है। ओके, कि कर्म योग कौन सा है, जनाना योग कौन सा है, भक्ति योग कौन सा है, पहले तो आप योग बताओगे, फिर आप क्लैरिफाई करोगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन दोगे, कि एक जो कर्म योगा होता है, एक जनाना योगा होता है, भक्ति योगा होता है, फिर आता है अनायामा कोश, ये मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर। अनायामा कोश कौन सा होता है, अनायामा कोश होता है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द पंचकोश, यानी फिजिकल बॉडी नरिश्ड बाय फूड needs proper diet, exercise, rest, foundation of all the layers. If weak, other coaches also suffer. And Gita emphasizes healthy body for performing duty. Okay, so yoga is skill in action. ये देखो, union of mind and body and spirit, ये सब helps achieve inner peace and efficiency in daily life। अगर आप इसमें लिखोगे ये सारे योग ऊपर जो दिए गए, तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आता है देवी समापत। बताया था ना देवी समापत क्या होता है, जो डेमन की जो क्वालिटीज होती है, इसमें सब लिख सकते हो, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन एंड ऑल। सो लाइक अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप अज्यूम करो आपको 3 to 4 मार्क पेजेस तो लिखने ही है मिनिमम। ओके, सो हाउ डज द गीता डायरेक्ट द माइंड टूवर्ड्स धर्म एंड कर्म। गीता जो है माइंड को धर्म और कर्म की तरफ कैसे डायरेक्ट करता है, तो पहले तो आप बताओगे कि माइंड क्या होता है। माइंड इज लाइक रेस्टलेस, लाइक अर्जुन का कैसे माइंड था, मतलब उस टाइम पे, तो आप बता सकते हो। इसमें एग्जांपल्स हर एक आप ट्राई करना कि आंसर जो गीता से रिलेट करके स्टार्ट करो, तो इसमें बता सकते हो गीता में जो है, गीता भी ऐसे स्टार्ट होती है कि अर्जुन जो उसमें वो दिखाए जाते हैं, रेस्टलेस दिखाए जाते हैं, फिर उनको गीता जो है प्रैक्टिकल वो देती है, नॉलेज देती है। ऐसे ही जो है गीता जो है धर्म और कर्म की तरफ लेके जाते हैं। धर्म क्या होता है, फिर आप डिफाइन करोगे, राइटिस ड्यूटी जो होती है अकॉर्डिंग टू वंस रूल। कर्म क्या होता है, सेल्फलेस एक्शन होता है। फिर आप इसमें टेक्निक्स बताओगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती है। फोकस ऑन स्वधर्म, अपने खुद के धर्म पे फोकस, परफॉर्म एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, कंट्रोल सेंसेस एंड इमोशंस, चूज ड्यूटी ओवर मूड एंड कंफर्ट। फिर इसमें वही इसका एग्जांपल दोगे अर्जुन का। देन इसमें कंक्लूजन लिखना कि इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, एथिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड ये सब। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर मेथड्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन गीता। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन मोड ऑफ नेविगेटिंग थ्रू लाइफ डिलेमा। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर मेथड ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ मैनेजमेंट के क्या क्या इसमें बताए गए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग गुनास बताया गया कि कौन से गुण को इंक्रीज करना चाहिए, कौन से गुण को रिड्यूस करना चाहिए। सो इंक्रीज किसको करना चाहिए, सत्वा गुण को, और रिड्यूस किसको करना चाहिए, राजस और तामस गुण को। फिर बताया देवी और असुरी समापत, कि देवी समाप्ति जो है वो लोगों में होनी चाहिए, देवी क्वालिटीज होनी चाहिए, और असुरी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। देन कंट्रोल ऑफ माइंड, की माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, फॉर ड्यूटी पे फोकस करना चाहिए, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। देन मोड्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कौन कौन से मोड है, श्रवणा, मनाना, निध्यासना। देन फील्ड ऑफ एक्शन, ये हर एक अप्लाई इन फैमिली एंड सोसाइटीज।
सो ओके, सो नाउ इसमें कंक्लूजन लिख देना। फिर उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्शन मोड ऑफ नेविगेटिंग थ्रू लाइफ डायलेमास। तो इसमें आप पहले बताना कि लाइफ जो है फुल ऑफ डायलेमास है, लाइक अर्जुन कैसे बैटल फील्ड में थे और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे स्टडी को लेके सब फेस करते हैं। आप लोग ना ये भी लिख सकते हो कि हाउ स्टूडेंट्स आर यू नो आजकल ये सुसाइड रेट जो है वो देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स में बिकॉज ऑफ लो मार्क्स इन एग्जाम्स। तो कितना ज़्यादा लोग दिल पे ले लेते हैं इस चीज़ को, कितना लोगों में भी पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि लोग अपने उसको रिजल्ट से बिल्कुल ऐसे जुड़ के रहते हैं कि अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं आया तो वो अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लेते हैं। देन कर्म योगा, perform prescribed duties sincerely, nishkama karma, without selfish desire for result, work as duty, offering not for praise or reward, maintain equanimity, लाइक समानता इन सक्सेस एंड फेलियर। इक्विनिमिटी क्या होता है कि तुम इक्वली रिएक्ट करते हो एक चीज़ को, सक्सेस में भी सेम रहते हो, फेलियर में भी सेम रहते हो। ये नहीं है कि सक्सेस मिल गई तो तुम आसमान में चढ़ गए या फेलियर मिल गया तो तुम बिल्कुल स्ट्रेस में चले गए, ऐसा नहीं है। मोमेंटम होता है कि लाइफ में इक्वलिटी होती है। तो स्टूडेंट स्टडिंग ऑनेस्टली विदाउट ओनली चेजिंग मार्क्स, ये एग्जाम्पल तुम हर एक उसमें लिख सकते हो। सो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस एंजाइटी, बिल्ड्स डिसिप्लिन, मेंटल पीस एंड एथिकल। ओके, सो नाउ ये सब कुछ श्लोक्स है, ये जो है आप याद कर लेना। ये हर एक यूनिट वाइज मैंने दिए हुए हैं कि कौन से यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, ये जो है ये आप याद करोगे। और एक योगस्थ कुरु कर्मणि संग तत्वता, ये जो है ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो और ये लाइक कोई से भी क्वेश्चन में आप इसको लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये इजी भी और आप ये लिख भी सकते हो। इट मीन्स कि धर्म और कर्म, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स एंड इक्विनिमिटी, डायरेक्टिंग माइंड। लाइक ये गीता का मेन जो नॉलेज है वो इन दोनों में उसमें दिख जाती है कि जो है मतलब ये मेन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सिलेबस में मेन मेन यही दिखाते हैं। तो आप ये दोनों भी याद करोगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जा सकता है। तो आपको ये याद करना है दोनों, और आप बाकी भी देख लेना, आपको जो इजी लगे आप याद कर लेना। बट हाँ, एक दो श्लोक अगर आप लिख के आते हो अपने एग्जाम में तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, नो डाउट। एक श्लोक लिखोगे बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इससे एग्जामिनर के ऊपर। ओके, सो यही सब कुछ वो है कि टिप्स क्या करना है, कि बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना है, टेबल्स यूज़ करने हैं, और यही कि मॉडर्न लाइफ एग्जांपल ज़रूर देना है। और गीता से रिलेटेड दो एग्जांपल, तो कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले तो एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो पहले तो एग्जांपल इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा उसको कोई गीता से रिलेट कर देना, ठीक है, तीसरा उसको रियल लाइफ एग्जांपल देना, तुम स्टूडेंट्स तुम अपनी लाइफ से एग्जांपल देना, तीन ये हो गया। फिर तुम चौथा समझाना कि इसका क्या सॉल्यूशन दिया है गीता में, ठीक है। फिर पांचवा तुम बताना कि कंक्लूजन वगैरह ये सब। तो तुम ये सब करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर देना अगर आपको हेल्प मिली हो तो, बिकॉज मेरा भी एग्जाम है, आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट फील्स। मेरे टाइम पे भी कोई वीडियो नहीं थी तो आई फेल्ट वेरी बैड, सो या आई डिसाइडेड टू हेल्प यू गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, बाय।